Okay, in the last period we discussed online as well as offline, section 1, section 2. In section 1 we discuss, learn or hear or understand 1.1 an astrologer's day, also 1.2 on saying place. In section 2 we have dealt, listen or understand 3 poems, 2.1 songs of the open road, 2.2 Indian weavers, and in the last video we understand the poem 2.3 the inch ke proc. Now today we are going to see our third section, writing skill. In third section today we are going to read, learn or understand 3.1 summary writing. Now in your textbook we have 4 sections. In section 3rd there is a writing skill and 3.1 is a summary writing. So today we are going to learn or understand a summary writing. Okay, the topic is 3.1 summary writing. Now come to page number 135. Page number 135. It is our first topic, and we know that in our question paper there will be a question for summary writing in your unseen passage, and you have to write the summary of the given unseen passage from your own self. Okay, now we are going to understand how to write a summary. Page number 135, section 3rd, 3.1 summary writing. A summary is a record in the reader's own words that gives the main points of a piece, such as newspaper, article, a lecture, a passage, a chapter or even a whole book. Summary किसे कहते हैं? Summary कहते हैं उस रिकॉर्ड को जो रीडर क्या करता है अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से, जब वो किसी टॉपिक को रीड करता है तो उस रीड किए हुए टॉपिक को, आर्टिकल को, न्यूज़पेपर को, बुक को वो समझकर अपने अल्फाज में लिखता है, उसे कहते हैं समरी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द आइस ब्रेकर. नंबर 1 क्वेश्चन इज डिस्कस इन पेस एंड गेस द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग. हियर आर 4 अल्टरनेटिव्स. नंबर 1 क्वेश्चन इज टू समराइज मीन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समराइज? समराइज का मतलब क्या होता है? टू समराइज मीन्स नंबर 1 दिया हुआ है put information in chronological order. Second, to recapitulate the main points in selection. Number 3, to introduce new information. And D, to write one's opinion about selection. आंसर क्या हो सकता है? समरी का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है. A, put information in chronological order. B, to recapitulate the main points in selection. C, to introduce new information. And D, to write one's opinion about selection. What will be the right answer? Yes? To write one's opinion about selection. To write one's opinion about selection. नहीं, ये नहीं हो सकता है. और कोई बताएगा? Good try. The right answer will be B. Right answer क्या होगा? B. टू रिकैप्चुलेट द मेन पॉइंट्स इन सिलेक्शन. पूरे पॉइंट्स को क्या करेंगे? सिलेक्ट करके एक ओन समरी बनाएंगे. नंबर 2 क्वेश्चन, द टाइप ऑफ समरी दैट कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया इज. द टाइप ऑफ अ समरी, समरी का वो टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ, जिसके अंदर एक पैराग्राफ होता है, टू एक्सप्रेस ये बताने के लिए द मेन आइडिया इज के उस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, तो उसे क्या कहते हैं? ए दिया हुआ है. ऑप्शंस आर आउटलाइन, बी रिपोर्ट, सी सिनॉप्सिस
और डी समरी राइटिंग या रिटर्न समरी। तो आंसर क्या हो सकता है? क्या बताया गया कि किसी पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ में उसके मेन आइडिया को बताया जाता है, तो क्या हो सकता है वो? रिटर्न समरी। वेरी गुड, राइट आंसर। तो आंसर क्या होगा? रिटर्न समरी। नाउ हियर इज वन मोर एक्टिविटी। देयर आर वेरियस वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अदर राइटर्स वर्क्स इनटू योर ओन राइटिंग। दूसरे राइटर के लिखे हुए राइटिंग को अपने अल्फाज में लिखना। अलग अलग रिटर्न पैराग्राफ को अलग अलग नाम दिया जाता है। पहला दिया हुआ है समराइजिंग, दूसरा दिया हुआ है सेकेंड वन इज पैराफ्रेजिंग, थर्ड है प्लेस राइटिंग, फोर्थ है कोटिंग, फिफ्थ है एडिटिंग और सिक्स्थ है गिस्ट राइटिंग। तो समराइजिंग का क्या होगा? समराइजिंग का होगा, पहले हम उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं यानी डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं बी में। पहला वेज ऑफ राइटिंग्स दिया, पहला दिया समराइजिंग, सेकेंड वन पैराफ्रेजिंग, थर्ड वन प्रेसिस राइटिंग, फोर्थ दिया कोटिंग, फिफ्थ एडिटिंग, सिक्स्थ दिया गिस्ट राइटिंग। डिस्क्रिप्शन इज in A, it includes not just the main idea but every detail expressed clearly and to the point. B, it includes selection of proper lines from the given text for correction, condensation and organization. C, it includes the most essential part or the crux of the matter. D, it includes taking broader segment of the source and condensing it slightly. E, it includes main ideas into one's own words. And F, it must be identical to the original and match the document word by word. The one ways of writing का वन दिया हुआ है समराइजिंग। समराइजिंग की जोड़ी क्या हो सकती है? समराइजिंग की जोड़ी होंगी E. It includes main ideas into one's own work। करो उसको। सेकेंड वन पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग की करेक्ट मैच होगा F. It must be identical to the original and match the document word by word. थर्ड है प्रेसिस राइटिंग, इसका होगा D। क्या होगा इसका? D. It includes taking broader segment of the source and condensing it slightly. नंबर फोर्थ है कोटिंग। कोटिंग का होगा A. It includes not just the main idea but every detail expressed clearly and to the point. Next दिया हुआ है फिफ्थ एडिटिंग, उसका क्या हो सकता है? B होगा। It includes selection of proper lines from the given text for correction, condensation and organization. एडिट करते हैं, वक्त एडिट करते हैं क्या करते हैं हम उसको सही से लगाते हैं और कुछ ऐड करना है तो ऐड करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। और डी वाला सॉरी 6 नंबर क्या है? गिस्ट राइटिंग, उसका होगा सी। इट इंक्लूड्स द मोस्ट इसेंशियल पार्ट और द क्रक्स ऑफ द मैटर। नाउ टर्न द पेज, राइट दिस आइस ब्रेकर एक्टिविटी इन योर इंग्लिश नोटबुक। नाउ कम टू पेज नंबर 136, समरी राइटिंग। समरी राइटिंग, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विच is one of the countless maxims coined by William Shakespeare. Brevity is the soul of wit is one of the countless maxims coined by William Shakespeare. It is relevant to speaking as well as writing. Brevity, brevity का मतलब होता है ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? इसको मुख्तसर करके लिखना। क्या करना? मुख्तसर। अक्सर जब हमको अनसीन पैसेज दिया जाता है तो उस अनसीन पैसेज को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, समझते हैं, समझकर हमने उसको समरी करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं? उसका मुख्तसर पार्ट जो मेन पार्ट है वो हम समरी के अंदर लिखते हैं। जैसा कि आपने आपके 10th के पेपर में लिखा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही आपको 12th में। तो समरी में क्या करते हैं? मुख्तसर करते हैं। ब्रेविटी मतलब मुख्तसर करते हैं। हम स्पीकिंग में भी करते हैं और राइटिंग में भी करते हैं। तो स्पीकिंग में भी हम कैसे करते हैं? स्पेशली समरी को अगर देखेंगे तो आप अक्सर क्या करते हैं? जो 3 घंटे की मूवी होती है, जो 3 घंटे की मूवी होती है उसे आप अपने फ्रेंड को आकर क्या करते हैं? 10 से 15 मिनट में या 20 मिनट में बता देते हैं। होता है ऐसा?
आप क्या करते हैं उसमें? व्हाट यू विल डू? You only say the main points, main character, main ideas, main theme. You omit the words, the lines, the character which are not important. मतलब जो important नहीं है वो characters को, वो बातों को आप वहाँ पर स्टोरी में नहीं बोलते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप मेन पॉइंट्स को, मेन थीम को क्या करते हैं, अपने दोस्त को आकर बता देते हैं। ब्रेविटी और कंसेशन इज द कटिंग आउट ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स वाइल कन्वेइंग एन आइडिया। मतलब ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? एंड कंसेशन, कंसेशन मतलब अलग करना। कैसे अलग करना? जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं, किसी आइडिया या किसी स्पीच को, किसी बात को जब आप किसी दूसरे को बताते हैं तो आप क्या करते हैं? अननेसेसरी पार्ट को कट करते हैं और उसी को क्या कहते हैं? ब्रेविटी कहते हैं। It aims to enhance communication by eliminating redundancy without omitting important information। मतलब यहाँ पर आप क्या करते हैं? जो important information है उसको नहीं हटाते, बल्कि जो unnecessary चीज़ें हैं, useless हैं, जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? उस समरी में से निकालते हैं और उसी को क्या कहते हैं? ब्रेविटी। Summary writing is one of its kind that has been described as one of the eliminatory principle of writing। और summary writing क्या है? ये एक किस्म की खास राइटिंग है जो हम यूज़ करते हैं उसूलों के साथ। To speak what is required and to write what is necessary is a requisite towards the development of language skill। और summary के अंदर हम क्या करते हैं? जो ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत है, वही चीज़ों को हम क्या करते हैं? समरी के अंदर इस्तेमाल करके बोलते हैं और लिखते हैं, जिससे हमारी लैंग्वेज स्किल क्या होती हैं? डेवलप होती है। मतलब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि कब कहाँ क्या बोलना है और कब कहाँ क्या नहीं बोलना है। आपने आपके ज़िंदगी में आसपास में से बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो ज़रूरत ना होने पर भी बहुत सी बातें करते हैं और जो मेन पॉइंट की बात करनी है वो करते ही नहीं और दुनिया भर की बातें करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉइंट की बात करते हैं, दूसरी बात करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो उसे ही ब्रेविटी कहेंगे। और समरी से हमारी क्या होती है? लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि किस पार्ट को इम्पोर्टेंस देना है, किस पार्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ब्रीफ इन रिटन एक्सप्रेशन। मतलब इसमें पूरे तरह से, सही तरह से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। टू एक्सप्रेस इन ब्रीफ द मेन पॉइंट्स ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड। रिटन रिकॉर्ड में क्या करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं कि क्या हमें लिखना है। टू एक्सप्रेस इन ब्रीफ ऑफ मेन पॉइंट्स ऑफ रिटन रिकॉर्ड इज द समरी राइटिंग स्किल एंड दैट कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस। और रिटन रिकॉर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? समरी को बहुत अच्छी तरह से बयान कर सकते हैं और इस स्किल को हम डेवलप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। यानी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये स्किल हमारी डेवलप होंगी। समराइजिंग हैज़ अ डेफिनेट पर्पस। द पर्पस ऑफ अ समरी इज़ टू गिव द रीडर अ क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। समरी ये क्या होती हैं? ये खास मकसद के लिखी जाती है, खास मकसद के लिए लिखी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? कोई भी रीडर उस पॉइंट के हिसाब से किसी एक टॉपिक को समझने के लिए वो समरी लिखकर उसे क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है और रीडर उससे सही से इंफॉर्मेशन ले सकता है और समझता है। एक सही पिक्चर उसे पता चलता है और ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है वो उसे पता चलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द समरी रीस्टेट्स ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट और अ लेक्चर विदाउट गिविंग एग्जाम्पल और डिटेल। यानी समरी के अंदर हमें सबसे अहम उसका मेन पॉइंट और मेन थीम पता चलती हैं और समरी में उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल नहीं होते और उसकी डिटेल नहीं होती, बल्कि मेन पॉइंट हमें उससे क्या चलता है? पता चलता है। सच एज डेट्स, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स। यानी उसके अंदर डेट्स नहीं होते, नंबर्स नहीं होते, कोई और हिसाब किताब नहीं होता, बल्कि सिर्फ जो मेन पॉइंट है, मेन थीम है, वही हमें एक्सप्लेन करती है और उससे हमें आइडिया होता है कि उस टॉपिक को समझने में आसानी से हम उस टॉपिक को समझ लेते हैं। नाउ हियर आर द नेक्स्ट पॉइंट, डूज ऑफ समरी। डूज मतलब हमें समरी के अंदर करना क्या क्या है। डूज ऑफ समरी। समरी में हमें करना क्या क्या है? रीड एंड री रीड द पैसेज। पैसेज को रीड करो
वापस से रीड करो, मतलब एक बार पैसेज पढ़ने पर हमें समझता नहीं है, उसे एक से ज़्यादा यानी 2 से 3 बार पढ़ो। अंडरस्टैंड, उसको समझो। अंडरस्टैंड के बाद थर्ड दिया हुआ है रीड द इंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर आपको कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो देखो। उसके बाद दिया हुआ फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज, इस बात का पता करो कि आपको समराइज क्या करना है, किसकी समरी करना है, क्या आपको अंदर से पता लगाना है। जैसे आप क्वेश्चंस बना के पूछेंगे, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, आप खुद से क्वेश्चंस बनाओ और उस पैसेज में क्वेश्चन बनाकर पूछो, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, उसकी थीम को समझने में आसानी होगी। फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, छोटे से छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो अपने आप से, उस पैसेज को पढ़कर समझकर। कनेक्ट द सेंटेंस यूजिंग लिंकर्स, उस सेंटेंस को क्या करो, 2 सेंटेंस को लिंक करो लिंकर्स यूज़ करके, जैसे कि एंड, एज वेल एज, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके। रिमूव रिडाउंडेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द की सेंटेंस, मतलब ऐसे वर्ड्स को अंदर से निकाल दो जो यूजलेस हैं, अननेसेसरी हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उन्हें क्या करो, निकाल दो। रिडाउंडेंट मतलब जो यूजलेस हैं। ओमिट डिटेल्स, ऐसी डिटेल को निकाल दो, हटा दो जो इम्पोर्टेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रही है। अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन, अपनी खुद की तशरीह अंदर ऐड करने से अवॉइड करो, बचो, उसमें कोई और अपने से खुद से कोई चीज़ों को ऐड ना करो। अब उसके बाद दिया हुआ है डोंट, डोंट में क्या दिया है, अब वो देखेंगे हम क्या करना है और क्या नहीं करना है। डोंट में मतलब क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, यानी उसके अंदर कोई चीज़ को ऐड नहीं करना है। एक्सक्लूड, उसको बढ़ाना नहीं है। ऐड, कोई और चीज़ को उसके अंदर ऐड नहीं करना है। कमेंट, उसके ताल्लुक से कोई कमेंट नहीं देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है बुरी है। गिव एग्जाम्पल्स, और उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आप समरी के अंदर नहीं देंगे, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, ऐड नहीं करेंगे, उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे और उसमें एग्जाम्पल्स भी आप नहीं देंगे। किसी चीज़ को आपने बार बार रिपीट भी नहीं करना है। नाउ एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एन आर्टिकल फॉर समरी, एग्जाम्पल के तौर पर हियर इज एन एग्जाम्पल of an article for a summary in your textbook. Now we are going to read this article and also we are going to see the summary of this article which is given in our textbook. Now I am going to read, look at in your textbook and put a finger on the lines. Learning disability, LD, is an umbrella term for a wide variety of learning problems. Children with learning disorders might be labeled as slow learners, but they are as smart as everyone else. They just need to be taught in proper environment conducive to their learning speed and level. Observation of a child over a period of time by parents at home and teachers in school can provide valuable information about the way a child is able to learn and function in all the ways that he should be able to at his age and level. There may be a certain apparent problem while reading, writing, listening, speaking, reasoning and dealing with maths. Once these problems are identified, it is time for proper investigation. It is important in order to clarify specific learning disorders and also rule out any other issue affecting the student's educational progress. Investigation may reveal various types of disorders like dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, specific reading disabilities, auditory processing disorders means APD, ADHD, etc. Auditory processing disorders, also known as central auditory processing disorders, is a condition that affects the sound that travels unimpeded through the ear, is processed or interpreted by the brain. Individuals with APD do not recognize subtle differences between sound and words.
Dyslexia is a condition that affects a person's ability to understand numbers and learn math, science and symbols, while dysgraphia affects a language-based processing skill like reading fluency, decoding, recall, writing and sometimes even speech. Many aspects of speaking, listening, reading, writing and arithmetic overlap and built on the same brain capabilities. It is not surprising that people can be diagnosed with more than one learning disability. For example, the ability to understand language underlies a learning to speak. Therefore, any disorder that hinders the ability to understand language will also interfere with the development of speech, which in turn hinders learning to read and write. ADHD, attention deficit hyperactive disorders, includes difficulty in staying focused and paying attention, restlessness and difficulty in controlling behavior. There are many other learning disabilities that can be identified in the normal classrooms. At school level, such problems can be solved to a great extent using various methods and treatments if diagnosed at an early stage. Inclusion in education is one of the ways to solve the problem of children with learning disorders. In a mixed ability classroom with effective teaching methods and conducive environment, a child with learning disability can progress in not only education but also social interactions. Implementation of inclusive classroom may vary, but the purpose will be achieved. Unfortunately, our country is less open to inclusive learning for children with LD, means learning disabilities. Unless handled efficiently, these disorders often transform to conditions like anxiety and depression. Parents, teachers, educators and other stakeholders must insist on the need to uplift children with LD, means learning disability. These children need to be handled carefully in their own space. They need love, encouragement and moral support so that they can emerge with great self-confidence, self-worth and determination. Now, here are the steps what we have to do by reading the article. Number one step is read the article twice. Firstly, we have to read the article or passage twice, means दो मरतबा आपने उस पैसेज या आर्टिकल को पढ़ना है. स्टेप टू, आस्क क्वेश्चन अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग. आप इस राइटिंग को लिखने का पर्पस, मकसद क्या है उसको देखेंगे. थर्ड स्टेप दिया गया है टर्न द पेज. स्टेप थर्ड, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. मेन आइडिया क्या है उसको पहचानेंगे, देखेंगे, समझेंगे. नंबर फोर्थ, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट. पूरा एक बार पहले दो बार पढ़ेंगे, समझेंगे, मेन आइडिया समझेंगे. उसके बाद एक ड्राफ्ट कच्ची तुम समरी बनाएंगे. रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट. उसको वापस से पढ़ेंगे, पढ़कर देखेंगे, फिर क्या करेंगे उसके अंदर और कुछ चेंजेस करना है तो करेंगे. राइट द फाइनल ड्राफ्ट और उसके बाद में आप फाइनल आपकी समरी बनाएंगे. अब जो हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ है, नाउ हियर इज गिवन समरी फॉर दिस आर्टिकल. उस आर्टिकल के लिए यहाँ पे एक समरी दी गई है. समरी, लर्निंग डिसेबिलिटी हैंडल विथ केयर. उसने हेडिंग दिया इसको लर्निंग डिसेबिलिटी हैंडल विथ केयर, ये हेडिंग दिया हुआ है. लर्निंग डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर मेनी लर्निंग प्रॉब्लम्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग, मैथ्स एंड अदर फिजिकल एंड मोटर डिफिकल्टीज. These problems need to be identified and investigated. A child can be diagnosed with more than one learning disability like dyslexia, dysgraphia, auditory processing disorder, etc. Such disorders can be dealt with using various methods in a regular classroom. One of the ways in implementation of inclusion may be vary, but it has a positive effect on the learning disabled. Though the idea of inclusion is not popular in our country, it can prove useful to handle such children. Along with the methods and techniques, the children also need encouragement and moral support to progress with self-confidence and determination. This is the summary which is written in our textbook for the above article. जो ऊपर आर्टिकल दिया गया उसके लिए यहाँ पे ये समरी बताई गई कि किस तरह से उसने पूरे आर्टिकल में से मेन पॉइंट्स को देकर किस तरह से उसने समरी बनाई है.
नाउ हियर इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन. A1, कंप्लीट द फॉलोइंग एज इंस्ट्रक्टेड. नीचे दिया गया उसे कंप्लीट कीजिए जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है वैसे. रीड द पैसेज एंड राइट इट्स समरी अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेप. जैसे ऊपर स्टेप दिए गए हैं उन स्टेप्स के हिसाब से नीचे दिए गए पैसेज की समरी हमने लिखना है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैसेज. लिसन केयरफुली. कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ. We greet one another, smile or frown depending on our moods. Animals too communicate, much to our surprise. Just like us, interaction among animals can be both verbal or non-verbal. Singing is one way in which animals can interact with one another. Male blackbirds often use their melodious songs to catch the attention of the females. These songs are usually rich in notes variations encoding various kinds of messages. Songs are also used to warn and keep off other blackbirds from their territory, usually a place where they dwell and reproduce. Large mammals in the ocean sing too. According to the adventurous sailors, enormous whales groan and ground while smaller dolphins and porpoises produce pings, whistles and clicks. These sounds are surprisingly received by other mates as far as several hundred kilometers away. तो इस पैसेज की हमको शॉर्ट में समरी करना है. तो जो स्टेप्स दिए गए थे ऊपर उन स्टेप्स को देखना है. सबसे पहले उसको रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे. उसके बाद उसका आइडिया समझेंगे, मेन थीम को समझने की कोशिश करेंगे. फिर एक छोटा सा ड्राफ्ट बनाएंगे, उस ड्राफ्ट को आपस से पढ़कर चेक करेंगे और एक फाइनल ड्राफ्ट आप तैयार करेंगे. और इस तरह से आप ट्यूसडे को आते वक्त ये वाली समरी आप बनाकर लाने की कोशिश करेंगे. ओके, इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डील दिस remaining brainstorming questions. Okay, bye bye, take care, have a nice day. अगर